हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टारगेट 9। आज ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो प्लान कर रहे हैं इन द अपकमिंग डेज कि हम एग्जाम दे दें पीटी का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है और एग्जाम भी जल्दी में देना चाहते हैं और ऊपर से आपको ये भी लगता है कि मुझे एग्जाम देना है, दैट टू आई मस्ट क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि मुझे बार बार से एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े, मेरा एग्जाम में एक ही बार दूं, फटाफट से दूं और क्लियर भी हो जाए, फिर ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि पीटी में टोटल आइटम टाइप्स कितनी होती हैं। 20 होती हैं टोटल। इन टोटल 20 आइटम टाइप्स आर देयर इन पीटीई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको इतना स्कोर लेना है, तो आउट ऑफ 20 आपको सिर्फ और सिर्फ देर आर 12 आइटम टाइप्स जो आपको करने की अच्छी तरह से जरूरत है। इफ यू आर गुड इन दैट 12 आइटम टाइप्स, you are done with your PTE exam. आपका स्कोर रेडी है आपके लिए. So let's get started. Okay students, now I will tell you the sequence of all 4 modules of PTE. After that we will discuss out of 20 item types which are the important item types. So first of all, if we talk about the sequence, first module of PTE is the speaking part, followed with the writing, that is the second one. Third is reading, and followed with the listening module. So we have 4 modules in total: speaking, writing, reading and listening. Now let me tell you very important thing. Here there will be no scheduled break. Once your exam will start, it will end. There will be no break in all 4 modules. If you take any break, it will not be scheduled. You have to miss any of your questions if you are taking the break. ठीक है? So make sure, be prepared while you are entering into the examination hall. Okay, now let's get started with the speaking section. In the speaking, if I talk about item types, there are 5 item types in total. First is read aloud, repeat sentence, describe image, read a lecture, and last is answer short questions. So we have 5 item types in total. If I talk about first question, that is read aloud, that is actually important. It is actually carrying a good weightage. What will be there in the read aloud is 3 to 4 lines will be given on the screen. You have to read it loudly, simple as that. But make sure there are 3 parameters and you should be good in that 3 parameters. That is your fluency, your pronunciation and your content, right? If you are good in your speech, if there is uninterrupted flow of speech, then you will get marks for fluency. Pronunciation means if you are clear in your words, fine. And content means whatever is written on the screen, you have to read it exactly as it is. So if you are good in these 3, read aloud is very easy for you, fine. And read aloud is actually carrying a good weightage because number 1 is, one question of read aloud is of 15 marks. And the second thing is, if you are performing well in read aloud, not only you will get marks in the speaking module, but your scores will be credited in your reading part as well. This is the meaning of integrated test. Integrated test means, if I say PT is integrated test, why PT is easier in comparison to other English language tests? Because this is integrated. Integrated means one module helps the another module to enhance its score, fine. Let's move to the repeat sentence. Repeat sentence is again very important item type, and it is actually one item type in the speaking which carries maximum weightage. So what we have to do here is listen the sentence and try to repeat exactly as it is. Fine. So this question actually gives you good marks. It is very important. So practice well at least 20 to 25 questions. Repeat sentence on daily basis. If I comes to third item type, that is describe image. Now in describe image, there can be a line graph, there can be any image, be it a line graph, bar map, bar graph, process, layout, chart, any picture, it can be anything, right? For every question you will be given 25 seconds to prepare and 40 seconds to speak, right? And in that 40 seconds, make sure you must be fluent enough. And when you can be fluent, if you know what to speak, okay? So what to speak will tell you in the 5 finger strategy. 5 finger strategy हमारी क्या कहती है कि there is a template of 5 lines, ठीक है? You just need to learn that template. It is available on our channel. आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं. 5 finger strategy मैंने डाली है जहाँ पे मैंने बताया है कि टेम्पलेट को यूज करना कैसे है, और एक ही टेम्पलेट है. देखो आपको इसमें कितनी इमेजेस आएंगे, अराउंड 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? सो एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक यू नीड टू चेंज योर टेम्पलेट.
आप एवरी टाइम सेम सिंगल टेम्पलेट को लर्न करके सारे इमेजेस को कवर कर सकते हैं, और बहुत ईजी वे से मैंने वहाँ पे फिट करना भी दिखाया है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको इसकी 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्क्राइब इमेज की डेली प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन बी फ्लुएंट। नेक्स्ट आइटम टाइप आती है रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर में आपको क्या करना है, स्पीकर विल स्पीक वन लेक्चर साइमल्टेनियसली व्हाइल लिसनिंग टू द लेक्चर यू नीड टू मेक नोट्स। नोट टेकिंग करने के लिए आपको एक्चुअल एग्जाम में 1 नोटपैड एंड 2 मार्कर्स मिलते हैं, ठीक है। तो द मोमेंट लेक्चर गेट्स एंड, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रीटेल दैट लेक्चर। आपने बोलना है इन योर ओन वर्ड्स, अगेन फॉर टाइम लिमिट उतना ही है 40 सेकेंड, जितना डिस्क्राइब इमेज के लिए था 40 सेकेंड्स के लिए आपको उसको बोलना है इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। इसका भी रिटेल लेक्चर का भी टेम्पलेट है, दैट इज वेरी सिंपल, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे पोर्टल पे या हमारे चैनल पे, ठीक है। लास्ट आते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, इट डजंट कैरी मच वेटेज। तो आउट ऑफ 5 आइटम टाइप्स करने वाले हैं मेन 4, तो इन पे कॉन्सेंट्रेट करो, और इन आउट ऑफ दीज 4 भी अगर मैं बोलूँ तो रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो प्रैक्टिस वेल। चलिए, आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, दैट इज राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग में क्या है, वी हैव 2 आइटम टाइप्स। फर्स्ट आती है समरी, उसको क्या बोलते हैं हम, समराइज रिटन टेक्स्ट, जिसमें एक लॉन्ग पैराग्राफ आपको गिवन है, अब उसकी एक ब्रीफ समरी, आउट ऑफ दैट लॉन्ग पैराग्राफ यू हैव टू मेक अ ब्रीफ समरी, दैट्स इट, इन अ सिंगल सेंटेंस। इसकी सबसे मेजर कंडीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है, यू हैव टू राइट अ ब्रीफ समरी इन अ सिंगल सेंटेंस, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो क्या होती है, 5 to 75 वर्ड्स, ठीक है। तो सिंगल सेंटेंस लॉन्ग कैसे बन सकता है, कनेक्टर्स के साथ बन सकता है, आपको वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और हर रोज़ की अराउंड 1 या 2 समरीज जरूर कीजिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइटम टाइप पे आ जाओ, दैट इज एसे पार्ट। राइटिंग में 2 सेक्शन होते हैं, वन इज समराइज रिटन टेक्स्ट एंड द सेकंड इज एसे। सेकंड जो एसे पार्ट है, अब ऐसे में आपको क्या करना है, पेपर में आपको पहले मैं बता दूं कितनी एसेस आ सकते हैं। 1 ऐसे आता है किसी स्टूडेंट को, किसी को 2 आते हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 2 एसेस भी आ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं, अब काफी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को 2 एसेस आ रहे हैं। एक ऐसे के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, अगर आपको 2 एसेस आएंगे देन अगेन 20 मिनट्स मोर विल बी अलॉटेड टू यू, ठीक है। तो अब बात आती है एसेस करने कैसे हैं। अगर मैं बात करूं कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें ग्रामेटिकली ना सेंटेंसेस बहुत अच्छे नहीं आते लिखने, और कई कहते हैं मैम हमारा बहुत अच्छा है, आई कैन राइट इन अ फ्री फ्लो। जो तो बहुत अच्छे से फ्री फ्लो में लिख सकते हैं, वेल एंड गुड, लिखिए। लेकिन जो बच्चों को ग्रामेटिकली सेंटेंसेस अच्छी तरह से फ्रेम करने नहीं आते, या उनको थोड़ा हेजिटेशन होता है लिखने में कि ये मेरा सेंटेंस ठीक है या नहीं है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं, नीड नॉट टू वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। हमारे पास उसके लिए भी टेम्पलेट है, जो कि आपको वोकैबुलरी एनरिच टेम्पलेट है, जिसमें आपके स्पेलिंग्स भी नहीं गलत होंगे, क्योंकि आपके पास हम आपको लर्न करवा देते हैं वो टेम्पलेट, तो आपके स्पेलिंग्स भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर भी अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब है जितने को पैरामीटर्स हैं जो पीटी को चाहिए वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन टेम्पलेट में बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, आपको और भी मिल जाएंगे टेम्पलेट्स अगर आप सर्च भी करोगे तो। लेकिन अब जो टेम्पलेट में हमने कंटेंट डालना है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। कंटेंट इन द सेंस, अब फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे आ गया टेलीविजन पे, ठीक। अब कंटेंट में अगर आप कंटेंट हटा के टेम्पलेट डाल देते हो, ठीक है, उसमें आपने ऐसे का टॉपिक डाल दिया टेलीविजन 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 टेलीविजन, टेलीविजन तो डाल दिया आपने, दैट इज ऐसे टॉपिक, लेकिन उसकी इलेबोरेशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर आपको मार्क्स नहीं देगा। एंड इट इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट क्रैम कर रहे हैं, एग्जाम में लिख के आ रहे हैं, और 5 या 6 टाइम्स ऐसे का टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है, और उनकी कंडीशन क्लियर नहीं हो रही। सो आई वुड सजेस्ट यू, यहाँ पे डोंट वेस्ट योर मनी बाय गिविंग रैंडम अटेम्प्ट्स। आप इसको समझिए कि हमने ऐसे को करना कैसे है, हमने कंटेंट उसमें लिखना है। टेम्पलेट वर्क करता है, टेम्पलेट तब वर्क करता है जब आप उसमें रेलेवेंट कंटेंट ऐड करेंगे, और वो कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू। कैसे, कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ एसेज। अब जो हमारे रिपीटेडली डेली बेसिस पे हमारे स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, हर रोज 2 या 3 स्टूडेंट्स का हमारे एग्जाम होता ही है, ठीक है, तो उनको जो भी एसेज आते हैं हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो वही एसेज हम सारी क्लासेस में चलाते हैं, ताकि अगर आपको वो ऐसे आ जाए तो आप कॉन्फिडेंटली वहां पे अपीयर हो सके, ठीक है। तो जो भी आपको कंटेंट मिलेगा
वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। जो भी आपके एसएस के टॉपिक होंगे आपको पहले करवाए जाएंगे ताकि आप एग्जाम में 20 मिनट्स में टाइमली अपना एसे माइंड अप कर सकें, ठीक है। होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग में हमारे पास 5 आइटम टाइप्स हैं इन टोटल रीडिंग में। MCQs, multiple choice single answer, multiple choice multiple answer, reorder paragraphs, filling the blanks reading and writing। तो 5 तरह के आइटम टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें करने वाले कितने हैं, एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट करना है हमने और एक रीऑर्डर्स करना है। अगर हम इन दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 100% हमारी कंडीशन तो क्लियर होने वाली है। लेकिन इनको करने की स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, तब बात बनेगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, फिलिंग द ब्लैंक्स, चाहे वो रीडिंग के हैं चाहे वो रीडिंग एंड राइटिंग के हैं, बोथ आर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक। अब मैं बात करूं अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की, फिलिंग द ब्लैंक्स की टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो रीडिंग इज वेरी इजी फॉर यू। रीडिंग कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। अब आपने करनी कितनी है, डेली बेसिस पे आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस की रीडिंग के एंड राइटिंग की प्रैक्टिस करो ताकि आपका इसमें होल्ड अच्छा बन जाए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लैंक्स फटाफट से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और मैक्सिमम वेटेज भी ब्लैंक्स की ही है रीडिंग में, तो इस पे ज्यादा टाइम लगाइए, ठीक। रीऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, रीऑर्डर्स में क्या होता है, जम्बलिंग ऑफ पैराग्राफ्स है, लाइक 4 to 5 sentences will be given to you in a jumbled form। आपने उनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, उनके हमने पेयरिंग करनी है, हर एक पेयर का 1 नंबर मिलता है हमें, ठीक है। तो 1 मार्क 1 पेयर, तो अकॉर्डिंगली अगर 4 पेयर्स बन रहे तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 तो आते ही हैं, तो अराउंड 8 से 12 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करिए, इफ नॉट मच तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस रीडिंग के भी, रीऑर्डर्स के भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसकी भी जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं अगेन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर आपको कोई भी लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या टिप्स की क्लास चाहिए आपको सेपरेट फिर से चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं उसी स्ट्रैटेजी क्लास को लेके आपको आगे एज सुन एज पॉसिबल प्रेजेंट करूँगी। चलो नेक्स्ट आइटम टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट आइटम टाइप इन द सेंस नेक्स्ट मॉड्यूल पर आते हैं, दैट इज द लिसनिंग मॉड्यूल। अब लिसनिंग सेक्शन में हमारे पास अगेन आई विल से बहुत सारी आइटम टाइप्स हैं, बहुत सारी मीन्स 8 आइटम टाइप्स हैं सबसे ज़्यादा। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो सबसे लेंथी है, जिसमें मैक्सिमम आइटम टाइप्स है 8। लेकिन करने वाली फिर से मैं कहूँगी उसमें जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें 8 में से देर आर ओनली 4 आइटम टाइप्स जो हाईली वेटेज्ड है, ठीक है। अब हम उन 4 की बात करते हैं। आउट ऑफ दैट 4 फर्स्ट आता है आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में हमने क्या करना है, अगेन एक लेक्चर हमें सुनाई देगा, वी हैव टू लिसन द लेक्चर, वी हैव टू मेक नोट साइमल्टेनियसली लिसनिंग द लेक्चर। उसके बाद आपने उस लेक्चर को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग इन 50 to 70 वर्ड्स, दैट्स इट। अब इसका भी टेम्पलेट है, ठीक है। तो टेम्पलेट को फिट करना कैसे है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स 1 क्वेश्चन, और सम स्टूडेंट्स विल गेट 1 समरी, अदर्स विल गेट 2 समरीज, तो 2 के केस में 20 मार्क्स, फाइन। और सेकंड थिंग इज इफ यू आर डूइंग गुड इन समराइज स्पोकन टेक्स्ट, 2 मॉड्यूल्स अगेन विल बी क्रेडिटेड, लिसनिंग एंड राइटिंग पार्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स, सुपर इजी आइटम टाइप है जी ये तो। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना है, एक पैराग्राफ गिवन है आपको, कुछ वर्ड्स उसमें से मिस्ड हैं, बस ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो आपने सुनना है और उनके ब्लैंक्स को फटाफट से आपने फिल कर देना है। बट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाईली वेटेज भी है, क्यों, क्योंकि हर एक ब्लैंक का 1 नंबर है। लेकिन अगर आपको ब्लैंक सुन गया और स्पेलिंग्स नहीं आते तो उस ब्लैंक का नंबर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करेंगे, अगर आपने ब्लैंक करेक्ट सुन लिया है, वर्ड आपको प्रॉपरली सुनाई दे गया है, आपने स्पेलिंग्स भी करेक्ट लिखने हैं। एवरी वर्ड स्पेल्ड करेक्टली विल गिव यू 1 मार्क। इफ स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, अगर आपको उसकी एंडिंग नहीं सुन रही, एस या ईएस नहीं सुन रहा, देन नो मार्क विल बी क्रेडिटेड फॉर दैट ब्लैंक, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आगे मैं बात करूं अगर थर्ड आइटम टाइप जो कि इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये उससे भी इजी आइटम टाइप है, सबसे इजी मैं कहूंगी। 1 पैराग्राफ इज गिवन टू यू, उसमें से आपने ये देखना है कि एक ऑडियो चल रहा है, सेम वही पैराग्राफ जो आपके प्रेजेंट हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक।
तो उसमें से आपने देखना है कि कौन से वर्ड मिसमैच हो रहे हैं, इनकरेक्ट बोल रहा है स्पीकर, आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देना है, हाईलाइट कर देना है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। तो जितने वर्ड्स उसमें से इनकरेक्ट हैं उतने मार्क्स आपके हैं। इफ देयर आर 5 इनकरेक्ट वर्ड्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 4 है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, अगेन कंसंट्रेशन चाहिए है। तो ये बहुत इजी, लेकिन द मोमेंट यू लॉस्ट योर कंसंट्रेशन यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो मे बी आपको वो वर्ड्स करेक्ट वाले ना मिले जो उसने इनकरेक्ट बोले हैं, आपको इनकरेक्ट ना मिले वो, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, कितनी 20 से 25 क्वेश्चंस की, ठीक। नेक्स्ट आइटम टाइप, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये एक ऐसे आइटम टाइप है जो हमारा जैकपॉट है। अब आप नाम से ही समझ गए हैं कि जैकपॉट का मतलब क्या है, लॉटरी है हमारी। तो इसको करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये, तो इसको करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट कैसे करना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है हमने इसको, ठीक है। करेक्ट मैनर में कैसे परफॉर्म करना है इसको, सेंटेंस आप सुनेंगे उसको एग्जैक्टली एज इट इज लिखना है। यू विल हियर अ सेंटेंस, यू हैव टू राइट दैट सेंटेंस एग्जैक्टली एज इट इज। अगर आप पूरा का पूरा ठीक में लिखते हैं, ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हैं उसमें, मीन्स if the sentence is of 10 words, the question is of 10 marks, and you will get 10 if you have written every word in a correct manner. स्पेलिंग ठीक होने चाहिए उसके, ठीक है, एग्जैक्टली सेम टू सेम आपने लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगेन अगर अब आप क्या कर रहे हो इसमें, आप सुन भी रहे हो और उसके बाद लिख भी रहे हो, तो लिसनिंग मॉड्यूल प्लस राइटिंग मॉड्यूल, अगर आप ये आइटम टाइप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपके 2 मॉड्यूल्स में मार्क्स जा रहे हैं, लिसनिंग में और राइटिंग में, ठीक है। तो इसकी जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, अराउंड 30 से 40 मार्क्स का जो पेपर है ना आपका, वो इस आइटम टाइप में से आ रहा है सिर्फ। दिस इज द वन सोल आइटम टाइप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल दीज 4 आइटम टाइप्स। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस भी हम ज़्यादा करेंगे, है ना। तो इसकी अराउंड आप 25 या 30 क्वेश्चंस डेली आज से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। और जब आप इन चारों में अच्छे हो गए हैं, दैट मीन्स यू आर रेडी टू बुक योर एग्जाम, और तब आपका एग्जाम भी क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको कोई जरूरत नहीं है री अटेम्प्ट देने की। लेकिन अगर इन आइटम टाइप्स पे जो मैंने अभी 12 आइटम टाइप्स बताई हैं, इनमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही अभी, तो मैं आपको कहूंगी प्लीज वेट, अभी आप एग्जाम बुक ना करिए, क्योंकि अगर आप बुक करते हैं एग्जाम, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इन आइटम टाइप्स में, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट आइटम टाइप्स, तो इनमें अच्छा परफॉर्म करिए। द मोमेंट यू फील कॉन्फिडेंट इन ऑल दीज 12 आइटम टाइप्स, गो एंड बुक योर एग्जाम। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम टाइप्स है और किस पे कितना फोकस करना चाहिए। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे कुछ नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में लेके आनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे, या फिर कौन सी आइटम टाइप मुझे कवर करनी चाहिए जिसकी आपको स्ट्रैटेजीज लगती हैं कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, ताकि आपको हेल्प हो सके आपका बैंड स्कोर लेने के लिए, सो प्लीज आप मुझे कॉमेंट करें। श्योरली आई विल कम अप विद दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।